हेलो व्यूअर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का एक नया टॉपिक 4 मार्च 2024। चलिए प्रीवियस वीडियो का कुछ रिवीजन करते हैं। विच कंट्री विल रिसेंटली मेक एबॉर्शन ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? ये फ्रांस कंट्री। हु विल रिसेंटली बैन रिक्रिएशनल कैनबिस यूज? थाईलैंड कंट्री। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनवेल्ड द यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम? नागालैंड स्टेट। Which country former Prime Minister Brian Mulroney has passed away recently? एक कर्नाटका। Recently, in which state will the first semiconductor fabrication plant be established? ये गुजरात स्टेट में। Recently, in which state a new species sea slug been found? ये उड़ीसा में मिला है। इसका नाम है मेलोनोक्लामिस द्रौपदी। ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का नाम से हुआ है। Who has recently got the additional charge of Energy Director General? Daljit Singh. Who has recently launched National Birth Defect Awareness Month 2024? Policy Commission. Which country has recently launched the Coalition of Global Gender Parity and Equality? ये इंडिया कंट्री। Which state government will set up Water Informatics Center recently? ये उड़ीसा स्टेट। What is the main objective of setting up State Water Information Center by the Odisha government? To store and disseminate data of water resource, जल संसाधन के डाटा संग्रहित और प्रसारित करना। Who has been recently announced at the host of 2027 World Athletics Championship? ये बेजिंग चाइना। Recently, the number of super rich in India has increased by how much percent? 6%. Which state has recently passed a bill aimed curbing illegal immigration? ये हरियाणा स्टेट ने। Recently, the Legislative Assembly of which state has opposed the proposal of erect in India Myanmar border fence? ये मिजोरम स्टेट ने अपोज कर रहा है। तो चलिए 4 मार्च का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Leopard population estimates fifth cycle was carried out by which one of the following organization in India? तेंदुए की आबादी का अनुमान 5वां चक्र भारत में निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा किया गया था? ये कर रहा है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। With respect to International Big Cat Alliance IBCA, consider the following statement. Statement number 1. Among the big cats, snow leopard and jaguar are also found in India. Statement number 2. The IBCA is headquartered in India. Which of the following statements are correct? So, correct answer is option number B, that is 2 only. Only statement number 2 is correct. Statement number 1 is wrong. Out of 7 cats, only 5 cats, that is tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah are found in India. Puma and jaguar not found in India. So statement number 1 is incorrect. Statement number 2 is correct because the headquarters of IBCA will be found in India. Recently, DGCA has imposed a fine of 30 lakh on which company? हाल ही में DGCA ने किस कंपनी पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एयर इंडिया। DGCA ने एयर इंडिया पर
30 लाख रुपया का जुर्माना लगाया। DGCA मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। रीजन ऑफ 30 लाख फाइन, द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन फाइंड 30 लाख फॉर नॉट प्रोवाइडिंग व्हील चेयर टू 80-year-old पैसेंजर। तो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन इसलिए फाइन किया एयर इंडिया को कि एयर इंडिया एक ओल्ड पैसेंजर को व्हील चेयर प्रोवाइड नहीं किया, दो ही हैज ऑलरेडी बुक्ड व्हील चेयर। सो द पैसेंजर वॉकड फ्रॉम द प्लेन टू द टर्मिनल, कोलैप्स्ड एंड डाइड with a cardiac arrest. Where was the first indigenously manufactured hydrogen electrolyzer inaugurated recently? हाल ही में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गुजरात। अभी गुजरात में फिलहाल एक सेमीकंडक्टर का प्लांट बैठा था रिसेंटली। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइजर? ये इलेक्ट्रोलाइजर क्या है? इलेक्ट्रोलाइजर विच यूज इलेक्ट्रिसिटी टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये प्लांट कौन बैठाया है गुजरात में? ये बैठाया है L&T ने। ये फर्स्ट इंडिजिनस मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रोलाइजर एट द ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट AM नायक हैवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स, हाजिरा गुजरात। ये हाजिरा गुजरात में बैठाया है। Which department is funding the first of its kind National Genome Sequencing Project to sequence 10,000 genomes and create a database? कौन सा विभाग 10,000 जीनोम का अनुक्रमित करने और एक डाटाबेस बनाने के लिए अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना का वित्त प्रोत्साहित कर रहा है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, DBT, जैव प्रौद्योगिकी विभाग। Where has the 21 feet high statue of महाराणा प्रताप been unveiled recently? हाल ही में कहाँ महाराणा प्रताप की 21 फीट की ऊंची प्रतिमा अनावरण किया गया है? So correct answer is option number B, that is Hyderabad. Who launched the National Urban Cooperative Finance and Development Corporation, the umbrella body for small banks, and set a target to establish one urban cooperative bank in each town? किसी ने छोटे बैंक के लिए प्रमुख निकाय राष्ट्रीय शहरी सरकार वित्त और निकास निगम की शुरुआत की और प्रत्येक शहर में एक शहरी सरकारी बैंक स्थापित करने का लक्ष्य रखा। ये इनॉग्रेट किए अमित शाह ने। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। Who has topped the recent खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024? हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन सीट्स पर रहा है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। Recently, an important bilateral समुद्र लक्षण अभ्यास was organized between India and which country? हाल ही में भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित हुआ है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मलेशिया। रिसेंटली आपका कौन सा एक्सरसाइज हुआ था? ये हुआ था दोस्ती 16। ये हुआ था ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। ये हुआ था आपका इंडिया
और मालदीव और श्रीलंका का बीच में। Which state's former governor अजीज कुरैशी हैज़ पास्ड एवे रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन हुआ है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उत्तर प्रदेश। Recently, from which country has Iran launched a domestically developed imaging satellite? हाल ही में ईरान ने किस देश से घरेलू रूप से विकसित इमेजिंग उपग्रह का लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रूसिया। Where is the festival चाप चारकुट सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में कहाँ चाप चारकुट त्यौहार मनाया गया है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मिजोरम। Where was JK Youth Conclave 2024 inaugurated recently? हाल ही में JK Youth Conclave 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इन जम्मू। तो आज के लिए वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और फिर कल सुबह मिलेंगे विथ ए न्यू करंट अफेयर्स वीडियो।